નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજે આપણે એવા એક ગંભીર મુદ્દાની ચર્ચા કરવાના છીએ કે જે તમારી દિવાળી અંધકારભય કરી શકવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. આપણે આશા રાખીએ કે વીજળી દિવાળીમાં નહીં રીસાય. આપણે અપેક્ષા રાખીએ કે દિવાળીના દીવા નાના નાના વેપારીઓથી માંડીને મીઠાઈ, રમકડા, કાપડ, કપડા ની દુકાનવાળા, જેમણે આ કોવિડ પછી 2 વર્ષે પહેલી વખત દિવાળી આવી છે કે જ્યારે કંઈક વેપાર થવાની આશા જન્મી છે, એમની દિવાળી વીજળી વેરણ થવાના કારણે નહીં બગડે. નાના નાના ઉદ્યોગો, મધ્યમ કક્ષાના ઉદ્યોગો, જેમની પાસે પોતાનું કેપ્ટિવ પાવર જનરેશન નથી, એ નાના ઉદ્યોગો, લઘુ ઉદ્યોગો, માઇક્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, એમની દિવાળી વીજળી વેરણ થવાને કારણે નહીં બગડે. આપણે આશા રાખીએ કે રાજ્ય સરકાર આ બાબતમાં બિલકુલ સજાગ રહીને વીજળી વેરણ ન થાય તે દિશામાં યોગ્ય પગલાં લેશે અને એ યોગ્ય પગલાં લઈને 2 વર્ષ બાદ રાજ્યના નાના નાના કારોબારીઓને, ફેરિયાઓને, દુકાનવાળાઓને, મીઠાઈવાળાઓને, નાના ઉદ્યોગોને, માઇક્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝને, મધ્યમ ઉદ્યોગોને, બેચારાઓને 2 પૈસા રળવાની તક આવી છે. ત્યારે એમના મોંમાં આવેલો કોળિયો, દહેશત હતી ત્રીજી લહેર ઝૂંટવી જશે, પણ ત્રીજી લહેર તો હવે નહીં આવે. હમણાં એવું ગુલેરિયા કહે છે, કદાચ ફેબ્રુઆરીમાં આવશે ત્યારે આવશે, પણ વીજળી રીસાય એ શક્યતાઓ ઊભી થઈ રહી છે. દુનિયાભરમાં ઉર્જાની કટોકટી ઘેરી બનતી જાય છે. ચીન, બ્રિટન, દુનિયાના અનેક દેશોમાં કોલસો અને ક્રૂડ ઓઇલના કારણે ઉત્પન્ન થતા પેટ્રોલ, ડીઝલ અને કુદરતી ગેસ, આ બધાની તંગી પ્રવર્તે છે અને એ તંગીના કારણે એના રેશનિંગની ફરજ પડી છે. જો બ્રિટનમાં આ સ્થિતિ હોય, બ્રિટનમાં કટોકટી ઉર્જાની જો ઊભી થઈ હોય, ચીનમાં આ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું હોય, તો હવે ભારતમાં એ નહીં થાય એવી આપણે આશા રાખીએ. અને ગુજરાતમાં તો નહીં જ થાય, કારણ કે ગુજરાત એ મોડેલ રાજ્ય છે. ભારતમાં સૌથી સારી વીજ વ્યવસ્થાપન અને વીજ વ્યવસ્થા ધરાવતું રાજ્ય એટલે ગુજરાત છે. અને ગુજરાતમાં એ કટોકટી નહીં થાય એવી આશા રાખવી એ ખોટી નહીં પડે. આપણે એવી આશા રાખીએ કે રાજ્ય સરકાર ગુજરાતને દિવાળી વખતે બપોરના સમયે બરાબર દુકાનમાં ગ્રાહકી જામી હોય ત્યારે પંખા બંધ થઈ જાય, એર કન્ડિશનર બંધ થઈ જાય, ગ્રાહક જતો રહે, પરસેવે રેબઝેબ થઈ જાય, એવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ ન થાય તે માટેના પૂરતા પગલાં લેશે. મને વિશ્વાસ છે રાજ્ય સરકારની ક્ષમતા પર. હિન્દીમાં એક કહેવત છે કે અપની બિલ્લી ધારતી તો કુત્તે કો મારતી, મગર ધારના ચાહીએ. એટલે આપણે આ વખતે આશા રાખીએ કે રાજ્ય સરકાર બહુ જ સક્ષમતાથી, નવા ઉર્જા મંત્રી, મુખ્યમંત્રી શ્રી બધા સજાગ છે, બધા વેપાર ધંધા સાથે સંકળાયેલા છે, ત્યારે આ પ્રકારની કટોકટીનું નિર્માણ થતું અટકાવશે. એ પૂરી આશા અપેક્ષા સાથે આજની ચર્ચા આપણે શરૂ કરીશું. દર્શક મિત્રો, ગુજરાતમાં વીજળીની કુલ ઇન્સ્ટોલ કેપેસિટી કેટલી છે? 35,722 મેગાવોટ, જેમાં 20,979 મેગાવોટ કન્વેન્શનલ અને 14,743 મેગાવોટ રિન્યુએબલ એનર્જી છે. પણ એમાં બહુ પડવા જેવું નથી, આપણે આંકડામાં પડવું જ નથી, કારણ કે આંકડા તમને કંટાળી નાખશે અને આંકડામાં નથી પડવું. સવાલ એ છે કે આપણે જોઈએ છે 2021માં મહત્તમ વીજ માંગ 16,500 મેગાવોટ હતી. 2021ના વર્ષ દરમિયાન વધારાની 3,873 મેગાવોટ વીજળી ઉમેરાઈ છે. આમાં જે બીજી વીજળીની ક્ષમતા ગળે છે એમાં પછી હવાનું બરાબર વેગ નહોતો, એટલે મોટી બધી કેપેસિટી આપણે મૂકી હોય, પણ પવન ઉર્જા એ આપણને નિરાશ કરી અને બેસાડી દે તે પ્રકારની છે.
એટલે આ બધી જ બાબતોમાં આપણે સમજવું પડશે કે ચીન અને ઇંગ્લેન્ડ સમેત વિશ્વભરના દેશો કોલસો અને ગેસની અછતને કારણે ઉર્જા કટોકટીમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. દરમિયાનમાં મે 2021માં આયાતી કોલસાની કિંમત ટન દીઠ $89 હતી. ઓક્ટોબર 2021માં વધીને લગભગ બમણી એટલે કે મેટ્રિક ટન દીઠ $161 પહોંચી છે. રાજ્ય સરકાર 4005 મેગાવોટ વીજળી આયાતી કોલસા ઉપર આધારિત પાવર પરચેઝ એગ્રીમેન્ટથી ખરીદીએ છે. આ ખરો કેચ અહીં છે. 4005 મેગાવોટ વીજળી પાવર પરચેઝ એગ્રીમેન્ટથી ખરીદે છે. 3 મોટી કંપની એની સપ્લાયર છે અને જેટલી કંપની મોટી એટલી એની હાથ ઊંચા કરી દેવાની ક્ષમતા વધારે સારી. એટલે એ કંપનીઓ કોલસો મોંઘો થઈ ગયો છે અને ગેસ મોંઘો થઈ ગયો છે, અમને પોસાતું નથી એમ કહીને હાથ અદ્ધર કરી દેવા માટે સક્ષમ છે અને કરે જ છે. કરી દેવા માટે સક્ષમ છે નહીં, મોકો મળે કરે પણ છે. આપણા ત્યાં 8582 મેગાવોટ પવન ઉર્જા પણ બને કેટલી? 500 થી 1000 મેગાવોટ. આપણે કેપેસિટીમાં ગણાય પણ પવન ઉર્જા બને કેટલી? 8582 મેગાવોટની આપણી ક્ષમતા બને 500 મેગાવોટ મોટા ભાગે. 500 થી 1000 મેગાવોટ. બહુ વધારે પવન હોય તો 1000 બને, પણ મોટા ભાગે 500 મેગાવોટ બને. એટલે નામ બળેવો દર્શન ખોટે જેવી વાત છે. ગુજરાત વીજ નિગમ લિમિટેડ દ્વારા જુદા જુદા પ્રોજેક્ટ સાથે સ્પર્ધાત્મક ભાવની પદ્ધતિને અનુસરીને ટૂંકા અને લાંબા ગાળાની વ્યવસ્થાઓ થકી 1500 મેગાવોટ માટે કરાર કરવામાં આવ્યા છે. તેમાંથી પણ માત્ર 500 મેગાવોટ ક્ષમતા જ ઉપલબ્ધ છે. જુઓ, કરાર 1500 મેગાવોટના, મળે 500 મેગાવોટ. મેં તમને કહ્યું હતું ને, જેટલા મોટા નામ બડે ઓર દર્શન ખોટે, આ 3 મોટી કંપનીઓ એવી છે કે જે વચ્ચે સેબાસ્ટિયન મોરિસ સાહેબે કહેલું કે બાંગ્લાદેશમાં ઉદ્યોગો અને બાકીનું બધું ઝડપથી થાય છે, સ્થપાઈ શકે છે, કારણ કે ત્યાં કોઈ મોટા ઔદ્યોગિક ગૃહો નથી જે સરકારનો હાથ કાંડું આબળી શકે. આપણા ત્યાં તો ઔદ્યોગિક ગૃહો સરકારનું કાંડું આબળી શકે અને જરૂર આવે તો માથા ઉપર પણ બેસી શકે. આ 1500 મેગાવોટના કરાર છે, એમાંથી પણ 500 મેગાવોટની ક્ષમતા જીયુવીએલને ઉપલબ્ધ છે. જીયુવીએલ જે છે એનો ગુજરાત વીજ નિગમ લિમિટેડનો વાંક કાઢીશ પણ નહીં પણ કાઢું, કારણ કે કુવામાં હોય તો હવાડામાં આવે, એને મળતું જ નથી. તો હવે આપણા જે જૂના પ્લાન્ટ છે તે પ્લાન્ટને ચલાવીને વીજળી બનાવવાની વાત છે. હવે જૂના પ્લાન્ટનો પ્લાન્ટ લોડ ફેક્ટર આ ખખડધજ પ્લાન્ટમાંથી એની એફિશિયન્સી નથી, એટલે કયા ભાવે વીજળી પડે એ તો રામ જાણે. રાજ્ય સરકારનું પાવર પરચેઝ એગ્રીમેન્ટ 3 કંપનીઓ સાથે છે. એનું શું છે એની વાત પછી કરીશું. અત્યારે ચર્ચાની શરૂઆત આપણે કરીશું આપણી વિદ્વાન પેનલ સાથે. પેનલમાં છે પ્રોફેસર સેબાસ્ટિયન મોરિસ. મોરિસ સાહેબને હવે મને લાગતું નથી કે ગુજરાત સમાચાર ટેલિવિઝનના દર્શક મિત્રોને એમની કોઈ ઓળખાણ આપવાની જરૂર હોય. એક અતિ વિદ્વાન અને 1992થી આઈઆઈએમ અમદાવાદ સાથે સંકળાયેલ પબ્લિક મેનેજમેન્ટ એન્ડ પોલિસીના પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ પ્રોગ્રામના પહેલા ચેરપર્સન એવા મોરિસ સાહેબ આ વિષયના ઊંડા અભ્યાસી છે. ત્યાર પછી આપણી સાથે જોડાવાના છે અરુણકુમાર જગતરામકા. અરુણકુમાર પોતે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે. ગુજરાત એનઆરઆઈ કોકના પ્રમોટર અને ચેરમેન છે. અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ પણ કેવા, ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક મેળવીને ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે એમણે. ઇન્ડિયા ઓસ્ટ્રેલિયા સીઈઓ ફોરમ અને ઇન્ડિયા જાપાન બિઝનેસ લીડર્સ ફોરમના તેઓ શ્રી મેમ્બર રહી ચૂક્યા છે. આપણી સાથે દિનેશ વોરા છે, આર્થિક અને રાજકીય સમીક્ષક, ઇન્ડિયન રેવન્યુ સર્વિસમાં કામગીરી કરી ચૂક્યા છે. ગવર્મેન્ટ ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અને મેનેજમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં 25 વર્ષથી વધુનો ફેકલ્ટી તરીકેનો અનુભવ ધરાવે છે. 18 જેટલા પુસ્તકો દિનેશભાઈએ 5 ભાષામાં લખ્યા છે. આવી વિદ્વાન પેનલ આપણને આવા ગંભીર વિષયની ચર્ચા કરવા માટે મળી છે. મને લાગે છે આપણો સદનસીબ છે. ચર્ચાની શરૂઆત કરીએ આપણે. ચર્ચાની શરૂઆત કરીશું આજે આપણે જગતરામકાજીથી. જગતરામકાજી, આપ આ ક્ષેત્રમાં છો, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છો, ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ છો અને આપે દુનિયા જોઈ છે. કોલસો અને ગેસની તંગી એ ગુજરાતના વીજળીના પુરવઠાને કેટલી અસર કરશે અને એના ભાવ અને પાવર પરચેઝ એગ્રીમેન્ટની વાત પછી કરીશું આપણે, કારણ કે એમાં હાથ અદ્ધર કરી દીધા છે. મોટી 3 કંપનીઓ છે, 3માંથી બધી કંપનીઓ સરખી જ નાદારી નોંધાવે છે આ બાબતમાં. શું કહેવું છે આપને?
कोयले की जो तंगी आई है केवल कोयले की नहीं आई है, कमोडिटी बूम एक प्रकार से जो आया है, इसके पीछे एक मेजर कारण हुआ है जो पिछले साल सितंबर में, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, गुजराती में जी कोई बात नहीं, फ्लुएंट नहीं समझ। हमारे दर्शक हिंदी समझ सकते हैं, फिक्र मत हाँ, करें आप। कि पिछले साल अगस्त सितंबर में ये कोविड को लेकर के चाइना ने ऑस्ट्रेलियन कोल पे बैन लगाया, सेल्फ इम्पोज्ड। और उसके बाद चाइना ने, बिकॉज इंपोर्ट नहीं कर रहे थे तो उनका स्टॉक कम होता चला गया। रिसेंट में ये हुआ कि इंडोनेशिया में जो फ्लड आया कालीबंटन में, उसके कारण इंडोनेशियन कोल की सप्लाई भी अफेक्टेड हो गई। तो उसके कारण वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट कोल से अचानक शॉर्ट हो गया और कोल की प्राइस 3 to 4 टाइम्स हो गई है ग्लोबल मार्केट में लास्ट 2 महीने में। इंडिया में ये हुआ है कि कोयले का प्रोडक्शन 2015-16 से ही आप देखेंगे धीरे धीरे ग्रोथ नहीं होके स्टेबल या एक कम पे ही था, ग्रोथ नहीं हो रहा था। लेकिन क्योंकि इंडस्ट्रियल स्लोडाउन था और बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो रही थी, उसके कारण वो कमी उतनी खली नहीं। 2020 में कोविड को लेके पूरा का पूरा लॉकडाउन को लेकर के डिमांड एकदम कम हुई, लेकिन 2021 में अगस्त से, जुलाई अगस्त से जो वापस रिस्टार्ट होकर के डिमांड आज की तारीख में 2019 से भी ज्यादा है। तो ये जो अचानक ज्यादा डिमांड हो गई पिछले 2 सालों के अपेक्षा, वो कोल इंडिया के प्लानिंग में नहीं था और उसको रेलवे का मूवमेंट, रेलवे की वैगन अवेलेबिलिटी, सब चीजें एक साथ हिट कर रही हैं। ये हुआ है जो अभी अकस्मात हुआ है। लेकिन अगर आप ब्रीफ में जाएंगे तो जो कोल की अपनी पॉलिसी गवर्नमेंट की रही कि कैप्टिव कोल को ही देंगे, उसके कारण कोल माइन सेक्टर का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। क्योंकि कैप्टिव कोल माइन अगर मिलती है किसी यूनिट को तो उसको वो कॉस्ट सेंटर ट्रीट करते हैं, प्रॉफिट सेंटर ट्रीट नहीं करते हैं। और कोल माइन को अलग से डेवलप नहीं करते हैं मार्केट के लिए। मार्केट में कोल का दाम ज्यादा रहे, उनको अपनी माइन से कोयला कम पे मिलता रहे, जितना ज्यादा दिन तक मिले उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ये चेष्टा रहती है जो कैप्टिव कोल माइन होल्डर्स हैं। और छोटी छोटी माइंस होने से इकोनॉमी ऑफ स्केल भी मिस होती हैं। कोल माइन में ज्यादातर माइंस में आपको मालूम होगा कि 2 माइंस के बीच में मैंडेटरी बाउंड्री करनी पड़ती है, वो मैंडेटरी बाउंड्री कोयले की होती है। तो उतना कोयला आप वेस्ट करते हो अगर आप एक बड़ी एरिया को 3 माइन में या 4 माइन में डिवाइड करते हो, जो किया गया है। ये पॉलिसी रिव्यू करने की जरूरत है। पॉलिटिकल विल स्ट्रांग होना चाहिए कि पब्लिक जो भी रिएक्शन है उसको मैनेज करे और कोयला आगे से ये मिनरल जो माइन डेवलपमेंट एलोकेशन, नए ब्लॉक मर्चेंट कंपनीज को, जैसे वर्ल्ड की जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं, माइनिंग कंपनीज है, BHP, रियो टिंटो, ये सब इंडिया में आके काम करने तैयार है, लेकिन इनको वो मौका नहीं दिया गया है कोल में। इसकी जरूरत है। आज आप इंडस्ट्री को डेवलप कीजिए ऑन अ कॉम्पिटिटिव बेसिस, जिससे कि आज अपना वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल रिजर्व वर्ल्ड में है अपने पास। लेकिन हम लोग खुद आज कोयला सबसे लार्ज इंपोर्ट भी करते हैं। बहुत बड़ी विडंबना है, आप सबसे बड़े रिजर्व के ऊपर बैठे हो और फिर आप इंपोर्ट करते हो। क्यों? कि अपनी माइनिंग डेवलपमेंट नहीं की गई है। लोकल इश्यूज जो है, खास करके लोकल पॉलिटिकल रिलेटेड, सेमी माफिया टाइप, कोल माफिया इज वेल नोन, सो कैन टॉक अबाउट इट। तो वो इश्यूज को पॉलिटिकल विल से भी एड्रेस करना पड़ेगा, देन ओनली योर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। शॉर्ट टर्म में आई थिंक द सॉल्यूशन जो सरकार को करना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल पावर को स्टैगरिंग करके, वीकली स्टैगरिंग करके मैनेज करना पड़ेगा, सो दैट पीक डिमांड इज मैनेज्ड एंड कंज्यूमर्स एंड सिटीज आर नॉट अफेक्टेड। ये जैसे आपने कहा जयनारायण भाई शुरू में कि दिवाली अंधकार में नहीं होनी चाहिए, दिवाली नहीं, नवरात्रि भी अंधकार में नहीं होनी चाहिए। ये मेरा इमीडिएट सॉल्यूशन गवर्नमेंट को करना पड़ेगा डिमांड मैनेज करके, और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन करना पड़ेगा सप्लाई मैनेज करके। दैट्स व्हाट मैं बोलना चाहूंगा। जी धन्यवाद। मोरिस साहब, बात की शुरुआत तो हुई कि वैश्विक तंगी है, अभी कमोडिटी में भी तकलीफ है, इंडोनेशिया
देखो चाइना ने पहले ऑस्ट्रेलियन कोल को बैन कर दिया। भारत तो कोयले के खजाने पे बैठा है। और एक बात जगत राम का जी ने नहीं कही, जो हमारे बीज उत्पादक मित्र बोलते हैं, वो बोलते हैं कि कोयला में पानी काफी आता है। करीब 30% वजन तो कचरा और पानी का आता है। और जो खदान है वहां से जो आता है वहां भी पानी भर गया है। तो कोयला पानी के भाव बिकता है ऐसा कहिए तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि पानी कोयले के भाव बिकता है। ये उल्टा हो गया है। तो ये गड़बड़ी हुई क्यों, कौन जिम्मेवार है इसके लिए, और आपको क्या लगता है कहाँ ले जाएगी ये परिस्थिति? हाँ, ये जो आप कह रहे हैं उसमें पानी एक चीज है, दूसरा पत्थर डाल देते हैं। ओके, अभी देखो हमारे पब्लिक सेक्टर की बात किया जाए तो हमारे पास बहुत अच्छा पब्लिक सेक्टर है, जैसे एनटीपीसी है, जैसे बीएचईएल है। और दूसरा ये जो पब्लिक सेक्टर है जैसे कोल इंडिया, जो ये जो चोरी और कोल के ऊपर जो इलीगली कोल माइनर्स और दूसरे जो माफिया है उसके साथ पानी और पत्थर मिलाते हैं, वो चल रहा है। बहुत सारे रिफॉर्म हो गया है, कोल इंडिया बहुत बड़ी कंपनी बन गई, उधर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वगैरह आ गए। लेकिन ये जो चल रहा है वो चल रहा है क्योंकि इसके साथ बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स अलाइंड है। सो दिस इज कॉल्ड द कोल माफिया। तो उसको हैंडल करने की बहुत जरूरत है। लेकिन चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे जो कंपनीज है उनको ऑटोनॉमी होना चाहिए। ओके, सपोर्ट एक बात है। और दूसरा जो जगत रामका ने जो ये है कि हमारे जो आजकल जो माइनिंग हो रहा है और प्राइवेट माइंस जो खोलने की सोच है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी से सिर्फ जोड़ करके कैप्टिव कोल माइन करने से कुछ तो फर्क हो सकता है और हुआ भी है। लेकिन पूरा कोल पॉलिसी को चेंज करके प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना है। तो हमने कोल माइन एलोकेशन, कोल माइन को ऑक्शन भी किया, लेकिन वो ऑक्शन स्ट्रक्चर इतना बुरा था कि जो लोग कोल माइंस के राइट्स ले लिए वो उसके ऊपर बैठे, व्हाट वी कॉल्ड स्क्वाटिंग, कुछ डेवलप कुछ नहीं किया, क्योंकि उनका ये सोच था कि हम इसको ले लेंगे क्योंकि हम देशी है, हम ले लेंगे, और हम पॉलिटिकली कनेक्टेड है, हम ले लेंगे, और जैसे कोल का नीड आएगा तो फिर शायद हम इसको दूसरे को बेच देंगे, जैसे रियो टिंटो है, जो भी है, बड़े कंपनी को बेच देंगे, तो हम बीच में बैठ के पैसा बना देंगे। तो ये जो गवर्नमेंट का ऑक्शन फॉर्मेट है उसको इंप्रूवमेंट कर सकता है इन सच ए वे दैट ये जो स्क्वाटिंग है उसको प्रिवेंट कर, तो फिर हमारे कोल माइंस प्राइवेट सेक्टर में भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। और जैसे कहा गया, जगत रामका ने कहा गया, इस पे स्केल की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर स्केल आप बढ़ा दिया इसका तो कॉस्ट इसका कम हो सकता है जी। अभी कोल इंडिया का कॉस्ट से कुछ ज्यादातर हम प्राइवेटली अगर माइन किए विथ गुड स्केल तो उस पर बहुत फर्क आ सकता है, इवन अप टू अबाउट 20 to 25% से ज्यादा आ सकता है। ओके, तो ये एक बात है कि हमारे कोल माइनिंग का रिफॉर्म होना चाहिए। दूसरा ये एक बात है जो आप देख लीजिए कि देयर वाज एन इंडस्ट्रियल रिसेशन, खैर फ्रॉम 12-13 ऑनवर्ड सर्टेनली। ओके, अब तक कोई कैपिटल फॉर्मेशन हुआ नहीं है। okay? तो कैपेसिटी कोई ऐड नहीं किया कोल में, ज्यादातर ऐड नहीं हुआ। इसका कारण दो है, एक तो डिमांड नहीं था, तो हमारे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत कम चल रहा था। इनफैक्ट सम ऑफ द थर्मल पावर प्लांट्स हमने मॉथबॉल भी किया और सम को रिटायर भी कर दिया। तो अभी ऐसा चल रहा था, और हमारे जो जोश है कि सोलार हो जाए, इस सोलार के पीछे हम बहुत दौड़े, बहुत सारे सोलार लगा लिए, बट सोलार का प्रॉब्लम क्या है कि वो स्टोर नहीं कर सकता है, और रात को अगर मानसून आ गया तो अगर लाइट नहीं है, सोलार एनर्जी ज्यादा नहीं है, क्लाउड्स आ गया तो उसका
ज्यादा वो जनरेट नहीं कर सकते। तो अगर आप इफ यू पुट अप एक थर्मल प्लांट देखो, अगर आप 100 मेगावाट कैपेसिटी लगा दिए तो उसपे से हम 90 पे भी चला सकते हैं। लेकिन अगर एक सोलार को हम 100 मेगावाट लगा दिया, उसका बेस्ट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एवरेज तो उसका 25 से ज्यादा तो हो नहीं सकता वैसे भी। okay? और ऐसा है कि वो रॉन्ग टाइम पे अवेलेबल है। तो इतना ज्यादा अगर सोलर हमें लगाना है तो उसको सोलर एनर्जी को कैसे हम स्टोर करेंगे उसको भी सोच करना है, और उसका कोई सोच नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से वो उसके लिए बैटरी के लिए वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम हमारे हाइड्रो पावर प्लांट्स के साथ जोड़ दिया गया है थ्रू अ मार्केट मैकेनिज्म, तो सोलर कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड और इतना क्राइसिस आ नहीं पाता था। बट आई थिंक प्रीमेच्योरली हम सोलर के पीछे बहुत दौड़े और कोल को निग्लेक्ट किया, और इसके कारण अभी ये प्रॉब्लम आ गया। एंड आई थिंक अदर पॉइंट्स मिस्टर जगरमका ने तो हाईलाइट किया, सो आई वोंट हाईलाइट दैट सडन डिमांड आ गया, इंडोनेशियन ग्लोबल प्रॉब्लम भी है। ओके और ये जो प्राइस के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सर जी, मैं आऊँ प्राइस के लिए मैं आपके पास अलग से आऊंगा। प्राइस के लिए मुझे आपसे काफी चीजें सीखनी है, मेरी समझ में नहीं आती, 3 दिन से पढ़ रहा हूँ, तो आपके पास मैं आऊंगा। समय हुआ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, रुकेंगे कमर्शियल ब्रेक के लिए और फिर आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार दर्शक मित्रों, વીજળી વેરણ નહીં થાય ને એ ચિંતાની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ આપણે, અને એ ચર્ચા આગળ વધારતા બ્રેક પછી આપણે सीधा જઈશું આપણા ત્રીજા પેનલિસ્ટ દિનેશજી વોરા પાસે। दिनेश जी, आप तो गुजराती समझते हैं, फिर भी मैं हिंदी में बात कर रहा हूं कि भारत का जहां तक सवाल है, मोस्ट ऑफ द पावर स्टेशन के पास 3-4 दिन का कोयला है और हमारा 70% जनरेशन कोयले पे आधारित है जी। परिस्थिति यह है सर जी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मुताबिक भारत के कुल जो पावर प्लांट है उसमें 17 के पास कोलसा ही नहीं है, कोयला ही नहीं है जी। 21 के पास सिर्फ 1 दिन चले उतना कोयला है जी। 16 के पास सिर्फ 2 दिन चले इतना कोयला है, 18 के पास 3 दिन चले इतना कोयला है, और 135 पावर प्लांट में से 107 प्लांट ऐसे हैं कि जिनके पास 1 वीक से भी कम का कोयला अपने पास स्टॉक में है। नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस की आपके पास 15 दिन का कोयला स्टॉक में होना चाहिए। अब ये प्रिकेरियस कंडीशन में हम आ गए हैं और हम ये ढाढ़स बंधाना चाहते हैं लोगों को कि बिजली को कुछ नहीं होगा, जबकि हालांकि 70% बिजली कोयले से बनती है। कोयले का करीब करीब सब प्लांट में सत्यानाशी के नजदीक का स्टॉक बचा है। तो आप क्या कहना चाहोगे? आप सोचते हो कि दिवाली के करीब करीब कहीं बिजली का संकट इस देश में खड़ा हो जाए? व्यास जी, कुछ संकट ऐसे होते हैं जो शायद परिस्थितियों के कारण होते हैं, और कुछ संकट ऐसे होते हैं जिन्हें हम खुद पैदा कर लेते हैं। सेल्फ मेड डिसास्टर्स इसे कहा जाता है जी। पिछले कुछ सालों में हुआ क्या कि आप मौर्य साहब ने और जगत राम जी ने बहुत अच्छी बातें कही, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा, उसके आगे चलना चाहूंगा। सीधी सादी बात है कि जब 4-5 साल से हमारी इकोनॉमी डाउन थी तो हमारा पावर कंजप्शन भी डाउन था। हमारा कोल प्रोडक्शन पिछले 10 सालों में ऑन एन एवरेज 3.6% से बढ़ा, इससे ऊपर नहीं बढ़ा है। तो जितनी भी हमारी कोल प्रोडक्शन की और उनकी लॉजिस्टिक की अपनी जगह पहुंचाने की जो कमियां थी, वो देखा जाए तो इकोनॉमी के अंदर जो स्लो डाउन था उसके पीछे छुप गई। और हमने सोचा कि चलो जब सामने प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो हम इसको मैनेज कर रहे हैं, लेकिन फिर मौसम बदलता है तो पता लगता है कि वो कमियां बाहर निकल कर आ जाती हैं। इसके बहुत सारे पहलू हैं जिनकी ओर सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। एक पहलू तो कोल इंडिया हो या कोल माइंस का मसला कई दशकों से मेस में है।
समझ नहीं आता कि राइट पाथ क्या होगा। हर सरकार आती है, नई नीति अपनाती है, सुप्रीम कोर्ट भी उसमें इंटरवीन करता है और बड़े बड़े लेवल पे कैंसिलेशंस होते हैं, फिर सरकार नई किस्म की पॉलिसीज लेके आती हैं, और बल्कि फिर पिट हेड की पॉलिसीज हैं, नॉन पिट हेड के प्लांट्स हैं। पिट हेड वाले तो हार्डली 16-17 रह गए हैं, बाकी तो 135 में सारे के सारे नॉन पिट हेड प्लांट्स हैं। इसका मतलब बहुत लंबी दूरी तक आपको कोयला पहुंचाना है खदानों से। जहां तक पानी की बात है वो तो आपने पहले ही बता दी। अब इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि आपके रेलवे के जो रैक्स होते हैं जो उनको लेकर जाते हैं टाइम पर मिलने चाहिए। रेलवे में क्या हुआ पिछले कई सालों से, जिसकी ओर कोई ध्यान देता नहीं है, कि रेलवे ने अपने रैक्स के अंदर जरूरत के हिसाब से ना तो मॉडर्नाइजेशन किया, ना अपग्रेडेशन किया, ना उसके अंदर इंप्रूवमेंट किया। तो बात फिर इमरजेंसी वाली आती, जब इमरजेंसी होती तो ऑक्सीजन भी ढोई जाती है, अब इमरजेंसी में कोयला भी ढोया जा रहा है वहां तक, जिसे क्या कहते हैं प्लांट्स तक पहुंचाने के लिए। 83% के करीब करीब डिमांड होता है, लेकिन काफी बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसको आप 20% या 1/5 कहें जो इंपोर्ट के द्वारा पूरा होता है। इंपोर्ट कहां से होता है? इंडोनेशिया से या बाकी कुछ देशों से, सबसे ज्यादा इंडोनेशिया से। अब इंडोनेशिया में काली मंथन की जितनी भी हमारी जो माइंस है उनमें पानी भरा हुआ है, वो आज सप्लाई हो नहीं पा रही है। पहली समस्या चाइना को हुई, अब हमारी भी हुई। अब कोयले के रेट जब 3-4 गुना बढ़ चुके हैं, तो जो कोल प्रोड्यूसर्स हैं वो ये कहते हैं, अपना जो कंज्यूमर्स हैं वो कहते हैं अगर हम 4 गुना लेंगे कोयला तो हमारी तो फिर पास ऑन भी करना पड़ेगा, तो हम तो इतना महंगा लेंगे नहीं, क्योंकि उसके बाद हमें रेट मिलने वाले भी नहीं है उसके अंदर। ये सही बात है। दूसरा पेज फंसता है इसके अंदर आके, संकट के अंदर एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है, एक डिस्कॉम्स है बीच में, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको पैसे नहीं मिलते, उनको पैसे नहीं मिलते तो वो प्रोड्यूसर को पैसे नहीं देते। ये दुष्चक्र है। पिछली बार भी जब सरकार ने एक बहुत बड़ा एक पैकेज दिया था 20 लाख करोड़ का, उसमें करीब करीब 1 लाख करोड़ डिस्कॉम्स के लिए रखा गया था या बाकी इस पावर सेक्टर के लिए रखा गया था, लेकिन वहां क्राइसिस खत्म होता इधर नजर नहीं आता। अगर एनर्जी मिक्स देखो इंडिया का, तो इंडिया में एक महत्वपूर्ण चीज है जो कि नेचुरल गैस है, जो 6% के आसपास है, जिसको बढ़ाकर 15% करना है, तो कुछ उससे भला हो सकता है। अब यहां पर भारत के द्वारा कोई ऐसी कोशिश नहीं की जा रही है कि जिसके द्वारा कि ये प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, या फिर तुर्कमेनिस्तान से या फिर बाकी ईरान से ये जो पाइपलाइन के द्वारा बात हो रही थी वो पूरी की जा सके। भारत के पास एक अच्छा खासा रास्ता था जिसके बारे में भारत ने कभी सोचा नहीं कि चाबहार पोर्ट से अगर आप पाकिस्तान के थ्रू नहीं आ सकते, अफगानिस्तान के थ्रू नहीं आ सकते। कौन सा पोर्ट बोला आपने? ये कौन सा पोर्ट आपने बोला? पोर्ट का नाम नहीं समझ पाया मैं, कहाँ आया ये पोर्ट? चाबहार पोर्ट ईरान। अच्छा, अपना पोर्ट है? नहीं, ईरान का सर। ईरान का है, तो वहां तो हमें कोई लेना देना नहीं है ना? नहीं, लेकिन वहां से एक प्लान था हमारे पास भारत सरकार का, जो अंडर सी जो प्लान तो थे, प्लान था, बिल्कुल सही है, प्लान था। तो उसको पूरा करते तो हम यहाँ पे अब गैस से बहुत सारी चीजें हैं, पेट्रोकेमिकल्स भी हैं, फर्टिलाइजर्स भी हैं, और कई जगह पे गैस के द्वारा पावर प्लांट्स भी चलते हैं, ये भी नेचुरल चीज है। लेकिन गैस के रेट कई गुना बढ़ गए पिछले 6 महीने के अंदर ही, देखा है पूरी दुनिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब रेट्स इनपुट्स के सारे बढ़ गए तो आउटपुट का रेट बढ़ेगा। अब यहां पर पूरा का पूरा दोष भारत सरकार का इस मामले में आता है कि जो हमारी एनर्जी पॉलिसी है वो फॉल्टी है, उसके अंदर उन्होंने ढंग से काम नहीं किया और सोचा नहीं। जब प्रोडक्शन डाउन होता है तो आपकी ये डेफिशिएंसी मास्क हो जाती है, मास्क यानी छुप जाती है, लेकिन अब जब सारा का सारा निकल कर आया है तो मामला गड़बड़ हो रहा है। अगर हम देखें, चाइना के अंदर 60% बिजली थर्मल, इंडिया के अंदर 70% थर्मल, ऑस्ट्रेलिया में 53% थर्मल, वियतनाम में 53% थर्मल, होल वर्ल्ड में 33% है। अब हमारे पास कोई ऐसी स्कीम हो, कोई ऐसा फॉर्मूला हो जिसके द्वारा हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। एनर्जी की जो क्राइसिस है, चाहे यूरोप में है, जर्मनी में है, ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, चाइना में है, दुनिया के बाकी देशों में फैलता जा रहा है, लेकिन एंजेलो मार्केल ने एक उदाहरण पेश किया, एक एग्जाम्पल दिया। अपने जाने से पहले उन्होंने एक नई डील साइन की वहां पे, किससे? रशिया से साइन की, वो भी यूक्रेन के और अमेरिका के विरोध के बावजूद, कि अंडर द बाल्टिक सी वो वहां से नेचुरल गैस को ट्रांसफर करेंगे रशिया से लेकर जर्मनी तक। हम कभी कभी स्कीम बनाते लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। एंजेलो मार्केल की खूबी ये रही कि वो उसको इंप्लीमेंट कर पा रही हैं। अल्टीमेटली सारी प्रॉब्लम लॉजिस्टिक की आती है व्यास जी। अल्टीमेटली हर चीज जो है, जो आपके पेपर पे हो और उसके बाद आप उसको इंप्लीमेंट ना कर पाए जमीन पर, तो फिर आप अपने लिए समस्या ही पैदा कर रहे हैं। ये सारी लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम है, समझ की, प्लानिंग की, हर चीज की प्रॉब्लम एक साथ में,
अब चूंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो इसके साथ अब लगता है कि कमियां बाहर निकल कर आ रही हैं, कहीं 1 दिन का कोयला, कहीं 0 डे का, कहीं 7 डेज का। यानी कि हमारी हालत वही होगी जो कोविड के अंदर ऑक्सीजन वाली थी। हम भाग भाग के ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रहे थे, अब हम भाग भाग के कोल एक्सप्रेस चला रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। जी सर, नहीं आपने बहुत बहुत अच्छी प्रस्तावना रखी पूरे प्रश्न की, और ये बात भी मैं मानता हूं कि, मगर मैं तो ये सोचता हूं कि किसी का भी दोष हो, वो गरीब बेचारा 2 साल के बाद उसको अपने कपड़े बेचने का, अपनी मिठाई बेचने का, अपने खिलौने बेचने का मौका मिल रहा है, उसका क्या होगा दिवाली के समय पे? उसको अगर ब्लैकआउट आ गया या दोपहर में लाइट चली गई, ग्राहक उठ के निकल गया दुकान से, तो उसकी क्या हाल होगी? बिल्कुल आपने सही कहा, ये बात थी, और आपने बिल्कुल विस्तृत विवरण करके समझाया कि हम लोग, हमारी एक ही कमी है, एंजेला मर्केल को हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। वो बाकी की सब चीजों में तो ठीक है, बाकी ये कमी है। अच्छा जगतराम का जी, मेरे, आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपके लिए 2 प्रश्न है। एक तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक टर्म है मल्टी ऑर्गन फेल्योर, जिसमें एक के बाद एक किडनी फेल होती है, फिर लीवर फेल होता है, फिर फेफड़े फेल होते हैं, फिर हृदय जवाब दे देता है और इंसान चल बसता है। तो ये जो हमारी ग्रीड है, ये आपके मत से क्या आशीर्वाद है, या ये जो ग्रीड सप्लाई है वो, और खास करके वेस्टर्न ग्रीड जो सबसे बिजीएस्ट ग्रीड है, वो आशीर्वाद है या अभिशाप है इस तरह की परिस्थिति में? और दूसरी बात, ये सप्रेस करते हैं फ्रीक्वेंसी को, वी आर बीइंग सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी एट सप्रेस्ड फ्रीक्वेंसी, 50 साइकिल्स पर सेकंड पे हमें पावर नहीं मिलता है, और अगर 48 साइकिल्स पर सेकंड से नीचे चली गई तो कास्केड फेलियर होगा ग्रिड का। क्या लगता है आपको, कहीं आर वी हेडिंग टुवर्ड्स ए कास्केड फेलियर? आपने बहुत गुड इंजीनियरिंग वाला सवाल पूछा है, और उसका जवाब मैं इतना ही दूंगा कि आज ग्रिड का जो सिस्टम है, इंजीनियर ना होके डॉक्टर्ड हो रखा है। हाँ बोलिए प्लीज। तो इसमें आज ग्रिड सिस्टम में एडवांटेज ये है कि पूरी कंट्री में पावर सप्लाई का एक्सेस और शॉर्टेज नहीं, वो मैं मानता हूं सर, मैं बिल्कुल मानता हूं, बैलेंस आप बैलेंस कर सकते हो, मगर जब पूरा कंट्री अब भीख का कटोरा लेके निकला है कोयले की भीख मांगने के लिए, तो ये ग्रिड में बैलेंस क्या करोगे? है तो बैलेंस करोगे ना, मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं है तो नहीं, वही प्रॉब्लम आती है कि अगर कोई भी एक मॉड्यूल जरा सा भी एक्स्ट्रा पावर ड्रॉ करता है तो पूरी ग्रिड को फेल करता है, जो कई बार हो चुका है पास्ट में। ईस्टर्न ग्रिड डिस्टर्ब हुई है, पूरी कंट्री ब्लैकआउट हुई है, एक पोर्शन ब्लैकआउट हुआ है जी। तो दैट इज ए वेरी सीरियस थिंग। आर वी हेडिंग टुवर्ड्स दैट काइंड ऑफ ए सिचुएशन, और इज देयर a potential danger of that kind of a situation? The way thermal power plant जिस तरीके से आज बंद हो रहे हैं, आज मैंने टाटा पावर, अदानी पावर दोनों अगर बंद हो रखे हैं, और बाकी थर्मल पावर प्लांट अगर बंद होते हैं जी, तो उस सिचुएशन के अलावा और उपाय क्या रहेगा? बात सही है। तो यानी कि दिवाली हमारी अंधेरे में जो बैठे हैं, नजर उन पे भी कुछ डालो, अरे वो रोशनी वालों, उनका उपाय है, उनका उपाय। सर जी आपके लिए अलग, सर जी आपके लिए एक बहुत बहुत पेचीदा प्रश्न मैंने बचा के रखा है, आप वो तो बताना ही, मैं आपको पूछने वाला था कि ये पावर परचेज एग्रीमेंट जो है, पावर परचेज एग्रीमेंट की 15%, 20% ये लोग देते हैं, और बाकी की वो एक्सचेंज को बेचते हैं। अब पावर परचेज एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी चीप, एक्सचेंज को बेचते हैं, वहां से हम खरीदेंगे तो 20 रुपया 25 रुपया यूनिट खरीदेंगे। तो ये एक कौभांड है, आपको लगता है दिस इज द बिगेस्ट फ्रॉड बीइंग प्लेड अपॉन द पीपल ऑफ गुजरात और पीपल ऑफ इंडिया? ये तीनों कंपनी बड़ी बड़ी अपनी अपनी जगह पे तीनों कंपनी बड़ी जायंट कंपनी है, सरकारों को वो ठीक करने के लिए काबिल है, मगर वो ये अगर खेल रही है
तो लगता है आपको कि एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या पार्लियामेंट की कमेटी को इसकी तपास देनी चाहिए और इनकी क्या रमत है उसको बाहर लानी चाहिए? हाँ, तो उसका वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। मैं इतना बता सकता हूं कि ये जो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है उसमें दो तरीका का होता है, एक है केस 1 और दूसरा है केस 2। केस 2 में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो कैप्टिव कोल के साथ लिंकेज है, उसका पास कोल माइन के साथ ही है। अभी केस 1, शायद केस 1 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो इंपोर्टेड कोल या मार्केट बेस्ड कोल से चलाता है। तो इनका जब बिडिंग हुआ वो बिड फॉर्मेट पे गलती थी जी, और ये मेरे कलीग प्रोफेसर पांडे ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है। okay? तो उस पे गलती ये थी कि देयर वाज नो कंपल्शन ऑन बिडिंग अ सर्टेन पोर्शन ऑन द एस्केलेबल पार्ट। तो इन लोग ने, सब लोग, टाटा, अडानी, रिलायंस, सब लोग जो बिड किए उन लोग एस्केलेबल पोर्शन पे बहुत कम वेट दे दिया, तो उनका लेवलाइज टैरिफ कम आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, उनको बिड मिल गया। तो एक बार बिड मिल जाने से दे कैन स्टार्ट द पावर बिजनेस। तो उन लोग इन्वेस्ट किया, लेकिन इंडोनेशिया ने कोल का प्राइस बढ़ा दिया। उनके पास बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्ट्स तो थे एट फॉर कोल एट लोअर प्राइसेस, बट ये तो सिर्फ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, इट्स नॉट अ ट्रीटी। तो जब इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने इंटरफियर करके कोल का प्राइस बढ़ा दिया तो इनके जो प्लांट थे उसका वैल्यू जीरो हो गया, क्योंकि उस प्लांट उस लेवल पे भेज, तो ये कोर्ट पे चला गया। कोर्ट ने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, दे मस्ट सप्लाई एट दिस लो प्राइस। तो वो कहां भी नहीं जा रहा था। फिर दीपक पारेख कमेटी ने लगा दिया, उन्होंने कुछ कहा, उसको भी कोर्ट ने रूल आउट किया। और उस टाइम पर ये जो पावर प्लांट्स अंडर केस 1 विच गॉट बैडली अफेक्टेड, उन लोग ₹1 में भेजने के लिए तैयार थे बैक टू गवर्नमेंट। तो then once more the same committee decided, and now अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जब मोदी आ गया उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, कुछ वाया मीडिया हम सोच लेंगे, और इनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ओके, एट अ एलिवेटेड प्राइस बिकॉज कोल प्राइस हैड गॉन। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, उससे भी ज्यादा वो प्राइस मार्केट में बढ़ गया है। तो इन लोग अगर पावर नहीं सप्लाई किया है, दे आर बेटर ऑफ, because if they supply the power, buying the coal at these elevated price, उनका तो पूरा घोटाला हो जाएगा। तो इसका एक ही सोल्यूशन है जो सब लोग कहते कि नेवर कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्यूल का पास थ्रू होना चाहिए, बट उसको प्रॉपर इंडेक्स करना चाहिए, एंड देन यू कैन रन द पावर प्लांट। तो केस 1 केस 2 का मॉडिफाई करना चाहिए। जी सर। तो अभी एक सोल्यूशन है, अभी जो आप दिवाली की बात कर रहा है, गवर्नमेंट शुड क्रिएट ए टेम्पररी व्हीकल कि नेक्स्ट 2 months या 3 months पे वी आर गोइंग टू बाय कोल एट एलिवेटेड प्राइसेस, बेयर द कॉस्ट एंड सप्लाई। जी, बिकॉज हमारे दिवाली की भी बात नहीं है, अभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, चाइना प्लस शायद हमारे बेनिफिट में आ जाएगा इंडस्ट्री का। अभी उनका पावर कट देना नहीं है, यू नो। वो ग्रिड की कोई फेलियर की बात नहीं, क्योंकि हमारा ग्रिड इज मैनेज वेल। अगर पावर कम हो गया, पावर सप्लाई कम हो गया, उन लोग कट करेंगे डिमांड, ओके, तो वो तो मैनेज करेगा, नहीं तो पूरा ग्रिड तो खत्म नहीं होगा। जी सर, थैंक यू सर। दिनेश जी, मेरा प्रश्न ये था, और आप शायद IRS से है इसीलिए समझ पाओगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनियां, तीनों कंपनियों ने राज्य सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, GUVNL के साथ। अब वो मुकर जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट से, और वो वहां 20% अपना उत्पादन देते हैं, बाकी का उत्पादन वो एक्सचेंज में बेचते हैं। तो राज्य सरकार का लोड डिस्पैच सेंटर करता क्या है? क्यों वो लोड डिस्पैच सेंटर उसको ब्लॉक नहीं कर देता कि जब तक आप आपका कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट खत्म नहीं करते तब तक हम राज्य के बाहर बिजली आपको एक्सचेंज में नहीं जाने देंगे? तो हु इज एट फॉल्ट? सर, ऐसा है कि ये जितने एक्सचेंजेस हैं और जितने एग्रीमेंट्स हैं, ये भी बड़ा ट्रिकी बिजनेस है। खास तौर से एग्रीमेंट इस ढंग से फ्रेम किए जाते हैं, क्योंकि थोड़ी लीगल बैकग्राउंड भी है मेरी, कि इस ढंग से सारे के सारे एग्रीमेंट फ्रेम किए जाते हैं कि उनमें से रिगल आउट हुआ जा सके।
कहीं ना कहीं वो एक बिटवीन द लाइंस, माइक्रो कंडीशंस, हर चीज वहां क्लियर नहीं होती और बाद में फिर वो कोर्ट के अंदर जाके डिस्प्यूट में फंस जाते हैं। और मैंने तो इतनी ज्यादा कंपनियों को सरकार के बीच में, गवर्नमेंट वर्सेस कंपनी जो रहती है, सारा का सारा जो डिस्प्यूट्स हैं जहां पर गवर्नमेंट ही हारती है जी, और उसमें अल्टीमेटली गवर्नमेंट वैसे तो हारती है और कभी खुदा ना खास्ता वो जीत जाए तो इतने लंबे समय के बाद जजमेंट आता है कि तब तक वर्चुअली जो कंपनियों की होती है विक्ट्री हो चुकी होती है। तो हमारा जो लीगल सिस्टम है वो इतना लैक्स है, इतना लचर है कि वो आपको रिजल्ट नहीं देता है। सर जी, लीगल सिस्टम में कोई तकलीफ नहीं है। अगर प्राइवेट सेक्टर वालों का लीगल सिस्टम जगह पे है तो सरकार की ओर से जो लोग ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट वेट करते हैं, उनके बड़े बड़े कंसल्टेंट्स होते हैं। जैसे मैं कंपनी का नाम नहीं देना चाहता, अभी हमने अब्जों रुपये का उसको वो कंपेंसेशन चुकाया, मैं नाम नहीं देना चाहता और उनके कौन सलाहकार थे वो भी नहीं कहना चाहता। तो उनको क्यों नहीं, वो प्रोफेशनल बॉडी को क्यों नहीं आप बीच में ले आते कि इनकी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री वापस कर दो, आपकी वजह से हम इतनी नुकसानी में आए। मगर वो भी बात नहीं है। मेरी बात यह है कि सरकार अगर लो डिस्पैच सेंटर पे बैठ जाए कि हमारे पहले बिजली दो, हमारा अधिकार है, नहीं तो हम नहीं जाने देंगे, तो क्या कर लेंगे? कोर्ट में जाएंगे, होगा, देखा जाएगा, मगर दिवाली तो निकल जाएगी। तभी तो मैं कह रहा हूं कि घर जो है अंधेरे में डूब सकते हैं। अगर हर व्यक्ति अपना स्टैंड लेके खड़ा है, कंपनियां अपना स्टैंड लेके खड़ी हैं, कैमोफ्लैज करती हैं वो एक्चुअली वहां पर, और कैमोफ्लैज की वजह से जो दिखाया जाता है वो करते नहीं है और जो करते हैं वो दिखाते नहीं है। वो तो उस बीच में जो डिस्प्यूट की स्थितियां आती हैं वो लंबी खिंचती है और कहीं ना कहीं सरकार इसलिए भी दोषी है कि वो वहां पर थोड़ा अपना हाथ खुला छोड़ देती है और वो बहुत ज्यादा टफ होती नहीं है। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा। हाथ खुला छोड़ देने वाली बात है, बिजली खुली छोड़ देते तो अच्छा हो। तो जब वो खुला छोड़ देते हैं तो उनको शय मिल जाती तो फायदा उठाते हैं और वहीं पे सरकार झुकती हुई नजर आती है। जिस हर जगह पे सरकार झुकती नजर आएगी और चीजों को ढंग से लागू नहीं करेगी एग्रीमेंट के हिसाब से, तो वहां पर जितना फायदा है कंपनियां उठाती हैं, क्योंकि कंपनियां जो भी हैं वो यहां पर गुड टाइम के लिए हैं, वो आपके लॉसेस को शेयर करने के लिए नहीं है, वो आपके बुरे दिनों का साथ देने के लिए नहीं है। जो भी यहाँ पे बिजनेस एंटिटी है वो अच्छे दिनों के दोस्त है, वो बुरे दिनों के दोस्त नहीं है। अल्टीमेटली बुरे दिनों में फिर वही पब्लिक सेक्टर ही काम आते हैं, वही आके फिर रो धो के जैसे भी प्रोडक्शन करते हैं लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि उनको कुछ लोग पैसे दे ना दें। जैसे एनटीपीसी हमारी मेन संस्था है जो कि थर्मल पावर की मेन हमारी प्लेयर है, वो उनके पैसे अटके रहते हैं, कोई देता नहीं, कोई यहां से नहीं देता, कोई वहां से, वो रोते रहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली वो चूंकि स्टेट का एक ऑर्गन है तो उनकी मजबूरी बनती है कि एक्ट करना ही करना है, उनको तो देना ही देना है। लेकिन उन्हें डिफॉल्ट के बावजूद भी काम करना पड़ता है। प्राइवेट कंपनियां ये नहीं करती हैं, वो वहां पे अपना रोना धोना शुरू करके रिगल आउट हो जाती हैं। और एक आम आदमी जो मैं हूं, अगर मेरे लिए बिजली का खर्चा बढ़ जाता है, क्रूड ऑयल का खर्चा और पेट्रोलियम का खर्चा बढ़ जाता है, या मेरे लिए बाकी खर्चे जिसे एनर्जी क्राइसिस कहा जा रहा है आज की डेट में, या मेरे घर की पाइप गैस है, सीएनजी है, हर चीज का बढ़ जाता है, तो मैं एज ए कस्टमर कहां पे हूं अल्टीमेटली? ठीक, थैंक यू। दर्शक मित्रों, આ બધામાં એક મોટામાં મોટો પ્લેયર રાજ્ય સરકાર છે। અંધારપટ થશે તો આપણે પૂછવાના છે રાજ્ય સરકારને, રાજ્ય સરકારની સંસ્થાઓને। રાજ્ય સરકારના પ્રતિનિધિ આવ્યા હોત તો આપણને માર્ગદર્શન મળત। 2 દિવસ ગુજરાત સમાચાર ટેલિવિઝને સતત પ્રયત્નો કર્યા, રાજ્ય સરકારના પ્રતિનિધિ આવે। આપણે કોઈના ઉપર દોષારોપણ કરતા જ નથી, દોષારોપણ કરવું એ ગુજરાત સમાચાર ટેલિવિઝનનો એક એની શખ્સિયત નથી, પણ સાચું હોય તો સાચું કહેવા માટે તો વ્યક્તિએ હાજર રહેવું જોઈએ। રાજ્ય સરકારના પ્રતિનિધિની અમે ગુજરાત સમાચાર ટેલિવિઝને 2 દિવસ સુધી માથાના વાળ પગેલું છે કે તમે આવો આવો આવો, પણ નહીં આવ્યા। ખબર નહીં પ્રજાથી કેમ આટલી તકલીફ છે। અને એટલા માટે આપણે આજે રાજ્ય સરકારના તરફથી કશું નથી સમજી શકતા, પણ આ ત્રણેય નિષ્ણાતોનું એવું કહેવું છે કે દિવાળી વખતે અંધારપટ થઈ શકે છે। આપણે આશા રાખીએ કે અંધારપટ ન થાય, આપણે આશા રાખીએ નાના નાના વેપારીઓ, નાના નાના ઉદ્યોગો, નાના નાના કારોબારીઓ જે પોતાનો 2 વર્ષ પછી આ વખતે ધંધા તરફ આશાની મીટ માંડી રહ્યા છે, એમનો મોઢામાં આવેલો કોળિયો ન ઝૂંટવાય।
આ ચર્ચાનો હેતુ એ જ છે કે આપણે આગળથી એક મુદ્દા પર ચર્ચા કરીએ. રાજ્ય સરકાર એનું કામ કરતી જ હશે, એમાં કોઈ શંકા નથી, પણ એ કામ કર્યા પછી આ ન થાય એ નાના નાના માણસોની ચિંતાનો ગુજરાત સમાચાર ટેલિવિઝન આ રીતે પડઘો પાડવા માંગે છે, માટે આ ચર્ચા આયોજિત કરી હતી. કોઈ દોષારોપણ કરવાનો, કોઈનો વાંક કાઢવાનો, જે પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે તેની માત્ર ને માત્ર તટસ્થ ચર્ચા કરવાનો ઈરાદો હતો. કમનસીબે અમને રાજ્ય સરકારના પ્રતિનિધિ નહીં મળ્યા, એનો અફસોસ છે. ફરી પાછા આપણે મોરિસ साहब पास जाइए. मोरिस साहब, मेरी बात कुछ अलग थी और आपसे फिर मैं बात कर रहा हूं कि ये लोग अभी तीसरा शॉक आने वाला है. वो एल्विन टॉफलर ने तो फ्यूचर शॉक लिखा था. जो फ्यूचर शॉक है वो जर्क से आएगा, क्योंकि अभी ये वीज कंपनियां हैं वो जर्क के पास जाएगी कि हमारा कोयला महंगा हो गया, हमारा गैस महंगा हो गया और इसी वजह से हमारा बिजली उत्पादन महंगा हो गया, तो हमें बढ़ोतरी दो. तो उसका बोझ वो ग्राहक पे पड़ेगा. लगता है आपको ये उचित है? देखो, अभी ये समझ लो कि ये जो प्रॉब्लम इंडिया में अभी कोल का आ गया है इतना सीवियर, वो टेम्पररी है. कुछ दिन के बाद ये चला जाएगा. हाँ जी सर, उसका शॉर्टेज. लेकिन थोड़ा बहुत कोल का प्राइस बढ़ने वाला ही है. ओके, वो तो होगा ही होगा, क्योंकि चाइना का स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है चाइना में, और इसके कारण यूएस, इंडिया, यूरोप में प्रोडक्शन बढ़ेगा. तो ये अभी नया प्रोडक्शन है, उसके लिए और भी कैपिटल एसेट्स तैयार हो जी. तो अभी कुछ दिन के लिए बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक डिसरप्शंस, बिकॉज ऑफ सडन बंचिंग ऑफ डिमांड, ये सब आने के कारण प्राइसेस बढ़ेगा, लेकिन वो शायद परमानेंट नहीं होगा जी. okay? तो उसका प्राइस भी वापस नीचे आएगा जी. ओके. लेकिन तो ये मैनेज करना ही है, उस पर कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक फिनोमिना है, वो क्राइसिस आ गया और उसके रिकवरी हो गई. लेकिन आप जो मिस्टर दोनों स्पीकर्स ने बताए थे कि हमारे जो लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लानिंग 7 मिनट हाँ, वो इंटीग्रेटेड नहीं है जी. ओके. उसपे हम थोड़ा इमोशनली वो ले रहा है. वी आर नॉट डूइंग इट प्रैक्टिकली. मेरा इमोशन की मैं बात कर रहा हूं. सही सर. कि हम बिना सोचे एक्सेसिव सोलार और विंड के ऊपर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से डाल रहा है जी. okay? तो इसका अगर हमें इतना जल्दी एनवायरमेंट के हिसाब से सोलार और विंड के साथ जाना है, तो हम स्टोरेज का सोल्यूशन सोचना ही है. विदाउट दैट यू कैन ड्रॉप कोल या गैस, और गैस तो बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी शॉर्टेज आया तो गैस का पहले बढ़ेगा, क्योंकि वो वेस्टर्न कंट्रीज तो गैस के ऊपर ही है. तो हमारे जो स्ट्रैटेजी है टू प्रोक्योर गैस फ्रॉम अदर्स, पाइपलाइन का जो आप पहले स्पीकर ने भी बताया था, उस पर बहुत एरर्स है. okay? नेगोशिएशन जो ईरान से होना चाहिए उस तरफ नहीं हुआ है, तो इसलिए जो गैस ईरान प्रोड्यूस कर सकता था और हमारे पास आ सकता है, वो नहीं आया है. ओके, वी कुड हैव बॉट गैस फ्रॉम ईस्ट साइबेरियन फील्ड्स. ओके, रशिया ने सोचा कि इंडिया उस प्रोजेक्ट में आना चाहिए, लेकिन हमने बोला वो बहुत दूर है, लेकिन वी कुड हैव स्वैप्ड. ओके, हम उस पर पार्टिसिपेट करके हमारे और वहां के गैस हम जापान को बेच करके, और हमारे जो और जापान के जो गैस है वो हम ले सकते थे जी. So we could have expanded foreign investments from India जी. to secure both gas, petroleum and even good quality coal. जी सर. Okay? जी जैसे अडानीज ने किया है वैसे गवर्नमेंट कर सकते थे, बट जी सर. इन कोल गैस on a much larger scale. जी तो सर. प्रोक्योरमेंट ग्लोबली हमारे मिक्स क्या है, और फ्यूचर ये जो एसी डिमांड बढ़ रहा है हाउस होल्ड का, जी. वो एकदम उठ के बढ़ रहा है, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग भी आ रहा है, लोगों के पास पैसा भी है. तो ये जो एसी डिमांड सीईए ने अंडर एस्टिमेट किया जी. ओके. अभी देखो, मेरे ख्याल से वो इवन देन इट्स अंडर एस्टिमेटेड, क्योंकि उसका प्राइस बहुत बढ़ गया है जी. अगर देखो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे हम कॉस्ट टू सर्व पे एसी का समझ लो कि आज कॉस्ट टू सर्व इज ओनली अबाउट 4 रुपीज. 4-5 रुपीज पे हम अगर इलेक्ट्रिसिटी दे दिया रिच लोगों को, जैसे दिल्ली है, अहमदाबाद है, पूना है शहर में, तो एसी का डिमांड बढ़ते ही बढ़ते जाएगा.
तो इतना प्लानिंग नहीं है। हम अभी भी सोच रहे हैं कि हम 8 रुपीज में इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे तो एसी का डिमांड होगा। थैंक यू सर। उल्टा हो रहा है अभी। थैंक यू सर। आई लव टू मूव टू मिस्टर जगत राम का। जगत राम का जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप, 2 मिनट आपके पास है। आपको लगता है कि हम अंधकार भरी दिवाली की ओर आगे बढ़ रहे हैं? मैं प्रोफेसर मॉरिस की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा जी कि वी नॉट ओनली फेल टू प्लान, वी एक्चुअली प्लान टू फेल। राइट, वेरी गुड, आई एग्री। राइट सर, एब्सोल्युटली। अच्छा दिनेश जी, आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि ये आपने बोला कि इसमें लूपहोल छोड़े जाते हैं, और मैं मानता हूं कि ये तीनों कंपनियां जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर रही है और अगर एक्सचेंज को बेच रही है, तो क्या उनके ऊपर कोई पार्लियामेंट्री कमेटी या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उस बैठा के इन तीनों कंपनियों को ठिकाने लगाया जाए? क्या लगता है आपको? क्योंकि ये तो पब्लिक का द्रोह है, ये जो तीनों कर रही है। ये तीनों कंपनियों में एक को भी मैं शाबाशी नहीं दे सकता। ये तो जनता का द्रोह है, और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कोई छोटी कंपनियां नहीं है। सर एग्रीमेंट के अंदर पीनल प्रोविजंस हमेशा होते हैं, अगर आप कंडीशंस पूरी नहीं करते हैं जी, सरकार की जरूरी होगा कि उन पीनल प्रोविजंस को एक्टिवेट करे जी, और जो पेनल्टी होती है उनके ऊपर लगाए। एग्रीमेंट अगर कैंसिल करना पड़े वो भी करे, और ये पेनल्टी एग्जाम्पलरी होनी चाहिए कि ताकि दूसरे भी जो प्लेयर्स हैं इस फील्ड के अंदर उन्हें सबक मिल सके कि हाँ सरकार एक्ट कर रही है, टफ कर रही है और जनता के लिए कर रही है जी। और हाँ, मैं इसमें एक एग्जांपल छोटा सा जोड़ना चाहूंगा कि आपका जो मेन सवाल पहले ही पूछ रहे थे कि ये क्या दिवाली अंधकारमय होगी, ऐसा लगता तो नहीं है। सरकार कोई ना कोई फायर फाइटिंग करके उपाय कर लेगी आपका, लेकिन जैसे यूरोप के अंदर बहुत दशकों के बाद पहली बार बात हो रही है कि एनर्जी मिक्स को सब्सिडाइज करने की, जो कि यूरोप में होती नहीं थी, क्योंकि वहां बिजली 250 गुना घरों के लिए बढ़ गई है, करीब 250%। तो अब इंडिया के अंदर सोचना चाहिए कि जो घरों के अंदर एनर्जी मिक्स जा रहा है, सरकार उस पर राहत दे उनको। अगर उसके लिए सब्सिडी देनी पड़े तो दे, नहीं तो अपने टैक्सेशंस को कम करे, उधर पीनल प्रोविजंस लागू करे और इधर जनता से एनर्जी मिक्स के ऊपर एक रियल टाइम राहत दे, ताकि उनकी पॉकेट में 2 पैसे बच सके, जो दिवाली पे अपने बच्चों के लिए कुछ मिठाई तो खरीद सकें वो। हाँ सर जी, मिठाई की बात की, अगर मिठाई वाला ही अंधकार में डूबा होगा तो कौन बेचेगा मिठाई? वो आपने गाना सुना होगा, एक ये भी दिवाली है, एक वो भी दिवाली थी जी, उजड़ा हुआ गुलशन है, बिछड़ा हुआ माली है। मैं तो शुभकामनाएं दूंगा सबको, क्या सब अच्छा हो जाए। क्या दीप जलाए हम जब घर घर में अंधेरा है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। आपकी आशावाद की कदर करते हैं, अपेक्षा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि गुजरात में दिवाली अंधकार में न डूबे और सबका कल्याण हो, सरकार को भी यश मिले, प्रजा भी सुखी, और ये 1-2 साल के बाद मौका मिला है कुछ बिजनेस करने का, उनको भी 2 पैसे मिले। धन्यवाद। दर्शक मित्रों, राज्य सरकारનું પાવર પરચેઝ એગ્રીમેન્ટ 3 કંપનીઓ પાસે છે, પણ આ કંપનીઓ કોલસો અને ગેસના ભાવ વધી ગયા છે બાના હેઠળ માત્ર કુલ કોન્ટ્રાક્ટના 20% જેટલી પણ વીજળી રાજ્ય સરકારને આપતી નથી। ફળસ્વરૂપ રાજ્ય સરકારે બાકીની વીજળી ખૂબ મોંઘા ભાવ એટલે લગભગ 25 રૂપિયા યુનિટ દીઠ ખરીદવી પડે તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થતું હશે એવું મારું માનવું છે, જેનો જંગી બોજ રાજ્ય સરકાર પર પડે છે। જ્યારે બીજી બાજુ આ જ વીજ કંપનીઓ પાવર એક્સચેન્જીસને વીજળી વેચે છે। પ્રશ્ન એ થાય છે કે જો આ કંપનીઓ પોતાના કોન્ટ્રાક્ટ પ્રમાણે વીજળી રાજ્ય સરકારને પૂરી પાડતી નથી, તો રાજ્ય સરકારનું નિયંત્રણ કેન્દ્ર એટલે કે લોડ ડિસ્પેચ સેન્ટર આ વીજળીને બહાર જવા કેમ દે છે? આ મુદ્દો અતિ ગંભીર છે, અને આ ખાનગી કંપનીઓ પોતાનો કોન્ટ્રાક્ટ પૂરો કર્યા વગર વીજળી પાવર એક્સચેન્જીસને કઈ રીતે વેચે છે તેની ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસ થવી જોઈએ। ગુજરાતની પ્રજાનો આ મોટામાં મોટો દ્રોહ છે। પાઘડીનો વળ છેડે નીકળે તેમ કોલસો અને ગેસ મોંઘા થયા છે કારણસર હવે જર્ક પાસે ભાવ વધારો માંગવાનું પણ સરળ બનશે આ કંપનીઓ માટે એવું લાગે છે। આમ એક બાજુ ગ્રાહક પીસાય છે જે નાનો માણસ છે, એક બાજુ નાનો દુકાનદાર, નાનો ઉદ્યોગવાળો, નાનો માઇક્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, મધ્યમ કક્ષાનો ઉદ્યોગપતિ બધા જ પીસાય છે, ત્યારે બીજી બાજુ
રાજ્ય સરકાર ઉપર જંગી બોજ પડે છે, જે પણ પ્રજાના કરવેરાના નાણાંમાંથી ચૂકવાય છે. આ રમત ક્યાંક અટકવી જોઈએ, પણ એને અટકાવશે કોણ? એ $1 મિલિયન નહીં, $1 બિલિયન પ્રશ્ન છે એવું લાગે છે. આજે આ ચર્ચાને આપણે અહીં એક આશાવાદ સાથે પૂરી કરીએ છીએ કે ગુજરાતની દિવાળી અંધકારમય ન બની જાય, ગુજરાતમાં દિવાળીમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વીજળી કાપ ન આવે, અને આપણે દિવાળી એટલે દેવ દિવાળી સુધી ગણવાની, કારણ કે ત્યાં સુધી વેપાર ચાલતા હોય છે. એ આશા સાથે ત્રણેય આપણા વિદ્વાન પેનલિસ્ટ પ્રોફેસર મોરેશ સાહેબ, જગતરામ કાજી અને દિનેશ વોરાજીનો ખૂબ આભાર સાથે આ ચર્ચાને સમાપન તરફ દોરી જઈએ છીએ. મળીશું આવતીકાલે એક નવો વિષય. આવતીકાલે વિષય આપણો હશે માનસિક સંતુલન અને વિશ્વ ગાંડપણ નિવારણ દિવસ છે, એટલે એ અંગેની ચર્ચા આપણે કરીશું અને નવી પેનલ હશે, નવો વિષય હશે. ધન્યવાદ દર્શક મિત્રો, અમારી સાથે જોડાવા માટે. આ ચર્ચાને આપણે સમાપન તરફ દોરી જઈએ છીએ. શુભરાત્રી, શબ્બા ખેર.